Good afternoon to everybody. Welcome to our online course. Today we are continuing with the referee and judges rules and regulations. So today we have Colonel Manoj who will be taking today's lecture. Hello everyone. I'm Colonel Manoj Kumar, AIBA 3-star referee and judge from Boxing Federation of India. Today I was told to give a lecture on what should a coach should know about rules and regulation when they are going for competition. It is very important before going to any competition, they should update themselves with the latest rules and regulations. As you know कि अब हिंदी में जैसे कि आप लोग कंपटीशन में जाते हैं उससे पहले आपको लेटेस्ट रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में पूरा पता होगा, तभी आप अपने बच्चे को पूरे जस्टिफिकेशन के साथ खिला सकते हैं, क्योंकि आपको पूरे रूल रेगुलेशन का पता है, आपने अपने बॉक्सर को उसी तरह प्रिपेयर किया है. So on this line, today I'll be taking my classes. Today I'll be taking my class. Today I'll be taking class on the duties of seconds, how to protest, what are the medical and weighing procedures during competition, and any protest if they wish to file, that is I'm covering today. And especially I'm talking about fouls also, because half of coaches doesn't know ki when to inform their boxer ki now they can stop, when to stop a foul or when can they continue, which is minor foul, which is major foul, or which is flagrant foul. So I'll be taking my lecture on these subjects. The protest, you're talking about international competitions. Yes. Refer also to India, because we have many coaches here who are not at the international level. They are local coaches. So you can explain the differences, because in now IOC they don't allow the protest and AIBA allows. Okay, that we are not aware, because the AIBA IOC is following some separate rules. Yes. For the competitions. They I think yeah, that would be better if you tell them that segment. जैसा कि सबको पता है कि आप कोचेस हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी जो है और जो आपकी ड्यूटी है अपने बॉक्सर्स को तैयार करना है. मगर जब आप उस बॉक्सर को तैयार करते हो और जब उसको रिंग में लेके जाते हो, आपकी एक तरह से ड्यूटी वहां पे खत्म हो जाती है. रिंग में जाने के बाद बॉक्सर आपके रेफरी जजेस के हाथ में चला जाता है, जो कि अपनी जजमेंट से, अपनी रेफरीशिप से उसको डिसीजन को एज पर रूल रेगुलेशन देते हैं. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब आप अपने बॉक्सर को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो उसको हर रूल रेगुलेशन का पता हो. आप किस कंपटीशन के लिए जा रहे हैं उसके बारे में पूरा ब्रीफ होना चाहिए. इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का ये क्लास, छोटा सा क्लास आप लोगों के लिए किया है. Okay, I welcome to all the participants on the online sports development program, which is started by Boxing Federation of India along with Sports Authority of India. Today topic is important changes in rule and regulations in boxing, judging in boxing, 10-point scoring system, fouls, and medical and weighing in. These are the topics for today. As you know, when you go to competition, you are no more a coach. You are coach outside, but when you go to the ring side, you become a second. So we'll take first duties of seconds. First of all, second means team delegation member who can work in their boxer's corner of the ring. जैसे कि आपको पता ही है, जब आप बॉक्सिंग कंपटीशन में जाते हैं तो आप कोच की जगह एक सेकंड्स की आपको उपाधि दी जाती है, और वो आप उस बॉक्सर के कॉर्नर में सेकंड्स का काम करते हैं, उसको हेल्प करते हैं अलग अलग उसमें तरीके से. इन दिस आइबा के जो सेकंड्स होते हैं उनके लिए क्या आइबा certificate coaches and AIBA certificate team cuts technique due to unexceptional circumstances AIBA allows otherwise. इसका मतलब है कि जितने भी इंटरनेशनल कंपटीशन हैं उसके लिए जो सेकंड्स बनने की प्रक्रिया है, उसके लिए आपको पहले AIBA सर्टिफिकेट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो भी अलग अलग लेवल करके उनको दिया गया है,
जैसे कि ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिर्फ आईबा 3 स्टार जो एक जो सेकंड होगा वो कंपलसरी है, वो उसके बगैर आप जा नहीं सकते। अगर आपकी टीम में आईबा 3 स्टार कोच नहीं है जो सेकंड बन के जा सके, तो आपको किसी दूसरी टीम का 3 स्टार कोच दिया जाएगा जो आपके लिए सेकंड्स का काम करेगा। Each boxer is entitled to accompany to the ring by the 3 seconds. However, only 2 seconds may mount the apron and of the ring and only one may enter the ring. इसका मतलब है कि हर एक बॉक्सर को हर कंपटीशन में 3 सेकंड्स ऑथराइज किए गए हैं। तीनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया उनको काम करने की जगह दी गई है। 3 में से 2 रिंग के ऊपर चढ़ सकते हैं और इनके अंदर रोप के अंदर एंटर कर सकता है। The third one will be at the floor only. Duties of the seconds. Second must leave the ring and the apron prior to the start of each round and must remove seats, towel, bucket, etc. from the platform of the ring. सबसे पहली ड्यूटी जो आपकी बनती है, जैसे ही राउंड खत्म होता है, ब्रेक खत्म होता है, आपको रिंग से बाहर निकलना है। जैसे ही 10 सेकंड की आपको टाइम कीपर टप टप की आवाज देता है, तो आपको रिंग छोड़ना है और अपने सीट्स को हटाना है, तौलिए को उठा के, बकेट्स वगैरह को, जो भी आप स्प्रे वगैरह लेके गए हैं उनको लेके रिंग से उतर जाना है। Second must have a towel for the boxer during the bout. A second may indicate retirement of the boxer by throwing the towel into the ring when his boxer is considered to be unfit or unable to continue boxing except when the referee is in course of counting. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेकंड्स के पास हर बॉक्सर के लिए टॉवल होना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी भी बाउट के दौरान किसी भी टाइम सेकंड को लगता है कि मेरा बॉक्सर ज्यादा मार खा रहा है और ओपोनेंट उसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो अपने बॉक्सर को रिटायर कर सकता है टॉवल फेंकने के जरिए से। मगर वो टॉवल तब नहीं फेंकेगा जब रेफरी उसको केडी के दौरान कोई काउंट दे रहा है। Seconds can only use the transparent bottle water provided by the organizing committee. In case of a cut, the second can use non-petroleum skin protective jelly, collodion, thermobin solution, microfiber collagen, gel foam, surgical, and adrenal 1/1000 ice bags, and swabs are permissible. जैसे कि ये बता रहे हैं कि सेकंड्स सिर्फ ट्रांसपोर्ट बॉटल को ले सकते हैं। उसका एक रीजन है, जब आप ट्रांसपोर्ट बॉटल लेके जा रहे हैं तो आपको रेफरी देख सकता है कि उसमें कोई एनर्जी ड्रिंक तो नहीं है जो उसको इमीडिएट बेनिफिट दे रहा हो। सिर्फ आप उसको प्लेन वाटर दे सकते हैं और उसके साथ में आप कुछ मेडिकल जो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट ने अप्रूव की हैं, जेली हैं, कुछ फाइबर हैं, कुछ जेल है, कोई स्प्रे है, वो आपको ऑथराइज हैं ड्यूरिंग द बाउट ले जाने के लिए। सेकंड्स मे नॉट एडमिनिस्टर एनी ड्रग असाइड फ्रॉम द फूड वंस ड्यूरिंग द बाउट। जो ऊपर मेडिसिन बताई गई हैं, इनके अलावा आप कोई भी बाउट दवाई अपने रिंग पे नहीं ले जा सकते। सेकंड में यूज ए बैग विद मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ 30 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि सेकंड्स को जो बैग ऑथराइज है, उसकी भी उन्होंने लंबाई, चौड़ाई और विड्थ पहले से डिसाइड की हुई है, जिसमें कि 30 सेंटीमीटर वो लंबा हो सकता है, 20 सेंटीमीटर वो चौड़ा हो सकता है और 20 सेंटीमीटर वो हाइट में हो सकता है। तो ये एक स्पेसिफिकेशन पहले दी गई है बैग के लिए, जो एक सेकंड को आप ले जा सकते हैं। Seconds are not permitted to stand up और ये these are prohibited activities for second। मतलब ये वो चीजें हैं जो आप सेकंड्स बनने के दौरान आप नहीं कर सकते। Seconds are not permitted to stand or to encourage or incite spectator by words or sign during the bout। मतलब इसका मतलब ये है कि जब बाउट के दौरान आप अगर जो पब्लिक वहां बैठी है उसको अपने एक्शन से, लाउड वॉइस से, किसी भी तरीके से उनको वो नहीं बोल सकते कि जल्दी मेरे बॉक्सर के लिए हूटिंग करो, ये आपको अलाउड नहीं है। सेकंड, सीटिंग एरिया मस्ट बी 1 मीटर अवे फ्रॉम द रिंग कॉर्नर विद इन 1.5 मीटर टू 2.5 मीटर डेजिग्नेटेड एरिया। जो सेकंड्स के लिए एक एल शेप में जो आपके लिए जो एरिया नॉमिनेट किया गया है, जो कि रिंग से 1 मीटर दूरी पे 1.5 मीटर दूरी पे है, 1 मीटर दूरी पे है, उसी के अंदर आपको रहना, उससे आप बाहर मूव नहीं कर सकते जब बाउट चल रही है। Seconds are not permitted to walk off seconds designated area and disregard action against.
सेकंड बाउट के दौरान किसी भी टाइम अगर रेफरी ने आप उसके बॉक्सर को क्वेश्चन या वार्निंग दिया है या कुछ काउंटिंग दिया है, उसके खिलाफ खड़ा होके कोई वो अपनी जगह से हिल के उसको प्रदर्शित नहीं था। Seconds are not allowed to permitted to any uh, uh, throw any item into the ring to demonstrate a disagreement, to kick off any chair, water bottle, or take any other action that may be deemed as unsportsmanlike behavior. इसका मतलब है कि बाउट के दौरान आपको ऑथराइज नहीं है कि आप कोई भी चीज जो वहां पे रखी है, वाटर बोतल हो गई, बैग हो गया या चेयर होगी, उसको उठाकर इधर उधर फेंकें। ये आपको एक अनस्पोर्ट्समैन बिहेवियर के चार्ज में ले जाएगी, जिसके बदौलत आपको डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस इज नॉट परमिटेड इन द FOP such as but not limited to mobile telephone, walkie talkie, smartphone, headset, shortwave radios. यूज ऑफ जो भी आपके कम्युनिकेशन के यूज हैं वो FOP में अलाउड नहीं है। वो उसके बाहर आप रख सकते हैं, मगर FOP के दौरान ये चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए। Under no circumstances are seconds allowed to administer supplement oxygen or any type of inhaler to a boxer during bout. इसका मतलब है कि एज ए सेकंड आप अपने बॉक्सर को कोई ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा पफ नहीं दे सकते या कोई ऐसा इनहेलर उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते जिससे कि उसको जो थकान है उसको उसमें बेनिफिट मिल रहा हो। Seconds are not permitted to yell at, argue with any official on the FOP during or after the bout. अगर सेकंड्स को कोई प्रॉब्लम भी है किसी रेफरी जज से, तो वो बाउट के दौरान FOP में ये कोई भी उनके साथ आर्गुमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए AIBA has started protest, but that as Santiago said, it is not started by IOC, but it is in the AIBA program. Lodging a bout review to protest a decision. अगर बाउट के दौरान the bout review must be lodged by the boxer second within 1 minute after decision is announced by submission of a yellow card to the referee in the ring. अगर आप अब जब इंटरनेशनल कंपटीशन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके कॉर्नर में रेड में और ब्लू में येलो कार्ड रखा होगा, जो कि आपको एक अधिकार देता है। अगर आपको प्रोटेस्ट बाउट के दौरान डिसीजन में कुछ खराबी लगी तो आप उस बाउट के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको बाउट जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुआ उसके विदिन 1 मिनट वो येलो कार्ड कॉर्नर से ही रेफरी को बुला के जैसे रिजल्ट अनाउंस हुआ येलो कार्ड लिया और रेफरी को हैंड ओवर कर देना है। The second shall leave the field of play by the normal route in orderly fashion with the boxer and the other team officials. उसके बाद कार्ड देने के बाद सेकंड्स की बॉक्सर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो आराम से नॉर्मल रूट से जैसे तरह से जितने पे आप वापस जाते हैं उसी तरह से वापस जाएंगे अपने बॉक्सर को लेके। Upon leaving the field of play, the second shall make his own way alone to the equipment manager table and inform the equipment manager that the team wishes to protest the result of the bout. The equipment manager shall give the seconds the bout review form. अच्छा, जब आप सेकंड अपने FOP से बाहर निकलेंगे तो सिर्फ जो आपका चीफ सेकंड्स है, मतलब जो आपका मेन सेकंड है, वो अकेला जाएगा इक्विपमेंट मैनेजर के पास और उसको बोलेगा कि हम बाउट को रिव्यू करना चाहते हैं, हमें प्रो बारे में। वो जब ये बात उसको पता चलेगी कि कार्ड इन्होंने रेफरी को हैंड ओवर कर दिया है, इक्विपमेंट मैनेजर उनको बाउट रिव्यू का एक फॉर्म देगा जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जो आईबा की रूल बुक में पहले से है। सॉरी। The bout review forms will be available at the equipment manager table only to one second who worked in the boxer's corner during the bout. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो इक्विपमेंट मैनेजर है वो सिर्फ उसी सेकंड को देगा जो उस बाउट के दौरान कॉर्नर में उस बॉक्सर के साथ सेकंड की ड्यूटी कर रहा था। The second shall complete in English the submit the form review signing to agree that the team nationals federation will invoice for the fee at the end of the competition as per rule of 22 of the AIBA rules. Second उस फॉर्म को इंग्लिश में पूरा फिल करेगा और एग्री करेगा कि जो नेशनल फेडरेशन है उसकी फी जो कि AIBA रूल्स के हिसाब से पहले से नॉमिनेट की हुई है। The form shall be submitted to the equipment manager no later than 30 minutes after the result of the bout is recorded in the AIBA scoring system by AIBA scoring system operator. ये जो फॉर्म है आपको विदिन 30 मिनट 30 मिनट के अंदर अंदर इक्विपमेंट मैनेजर को
फिर से हैंड ओवर करना है पूरा फिल करके, जब बाउट का स्कोर आप अनाउंस हो चुका है। The equipment manager must record the exact time of the submission of the form, keep the original form and give a copy to the second. जब आप प्रोटेस्ट दे रहे होंगे तो इक्विपमेंट मैनेजर आपका फॉर्म लेते हुए उसमें टाइम फिल करेगा कि आपने किस टाइम बाउट का फॉर्म सबमिट किया है, और उसको ओरिजिनल अपने पास रख के कॉपी आपको हैंड ओवर कर देगा। At the end of the season, the equipment manager shall pass all bout reviews from the that session to the TD. मतलब बाउट जब सेशन उस सेशन का खात्मा हो जाएगा तो उसके बाद इक्विपमेंट मैनेजर वो सब सारे जितने भी उस बाउट सेशन के दौरान रिव्यू आए हैं, प्रोटेस्ट आए हैं, वो सारे फॉर्म टीडी को हैंड ओवर कर देगा। आईबा स्कोरिंग सिस्टम ऑपरेटर विल ईमेल स्कैन ऑफ द ऑल बाउट रिव्यू फॉर्म्स टू द आईबा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बाय ईमेल एट द एंड ऑफ द ईच डे ऑफ कंपटीशन। इसी दौरान जैसे ही कंपटीशन का वो उस दिन का पूरा सेशन खत्म हो जाएंगे, आईबा स्कोरिंग सिस्टम ऑपरेटर वो पूरी ईमेल जो रिव्यू फॉर्म ईमेल में स्कैन करके आईबा हेडक्वार्टर में भेज देगा। द आईबा स्कोरिंग सिस्टम ऑपरेटर विल रिकॉर्ड ऑल बाउट रिव्यू रिक्वेस्ट इन द आईबा स्कोरिंग सिस्टम। इसके साथ साथ वो एक कॉपी अपने आईबा स्कोरिंग सिस्टम में भी रखेगा। इफ द टेक्निकल डेलीगेट डिटरमाइंस, अब ये है कि उसका प्रोसेस का रिजल्ट क्या हो सकता है। If the technical delegate determines after consulting the bout review jury that the protest should allow to proceed, the bout in question will be reviewed by the jury using the bout review document at the session, if possible, or at the end of the final session of the day. This will be at the technical delegate discretion. जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे ही फॉर्म टीडी के पास आ जाएगा वो इसको ज्यूरी के पास लेके जाएगा। एक ऑलरेडी नॉमिनेटेड ज्यूरी होगी जो बाउट रिव्यू करेगी। अगर उनको लगता है कि हाँ इस बाउट को रिव्यू करना चाहिए तो प्रोटेस्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा और उसको रिव्यू किया जाएगा। वो बाउट का रिव्यू एक सेशन के एंड में हो सकता है या दिन के आखिरी सेशन के बाद हो सकता है। The technical delegate will determine whether the protest will be accepted or not after consulting with the bout review jury and will notify both the teams of their decision based on the AIBA technical and competition rule and those consultations. As मैं जैसे मैंने आपको बताया कि जो बाउट जूरी रिव्यू है, अगर टेक्निकल को लगता है कि हाँ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो दोनों टीम को बताएगा कि आपका प्रोटेस्ट एक्सेप्ट, टीम ए का प्रोटेस्ट एक्सेप्ट हो गया और आप डिसीजन की वेट कीजिए। अगर वो प्रोटेस्ट नहीं लेते हैं तो भी उसका इन्फॉर्म दोनों टीमों को किया जाएगा कि डिसीजन लिया नहीं गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया आपका प्रोटेस्ट, और जो जीता हुआ बॉक्सर है वो जीतने के लिए कल के लिए तैयार रहे। The analysis will take place in the bout review office if one is available or in other suitably equipped local space within the venue. जो बाउट की रिव्यू की कार्रवाई है वो एक प्री डेजिग्नेटेड एरिया होगा, वहां पे की जाएगी जहाँ पे पूरा आपका सुटेबल इक्विपमेंट होगा, प्रोजेक्टर, वीडियो और जितने भी कैमरे से बाउट को रिकॉर्ड किया गया उसके साथ देखा जाएगा। बाउट रिव्यू विल बी कंडक्टेड इन द ऑर्डर that the bouts took place during the day. The bout review will be considered lost regardless of whether it is accepted by the jury or withdrawn by the team. बाउट को रिव्यू पूरा किया जाएगा। जो प्रोटेस्ट पहले आया था पहले वो देखा जाएगा, अगर दूसरा आया दूसरे के वो नंबरों के हिसाब से उसको देखा जाएगा। If the technical delegate believes that the decision of the judges or the referee has been taken in contravention of the AIBA rules, the technical delegate can lodge a bout review by following of these rules. अगर टेक्निकल डेलीगेट को रिव्यू के दौरान लगता है कि ये जो डिसीजन है इसमें रेफरी या किसी जजेस की उनकी जो डिसीजन पे उनको संदेह आ रहा है तो वो बाउट रिव्यू को रख सकता है। ये थे आपके प्रोटेस्ट के बारे में। इसके बाद रिव्यू होने के बाद जो भी डिसीजन होगा, अगर आपका जिस टीम ने प्रोटेस्ट किया है वो विद होल्ड हो जाता है तो नहीं कुछ होगा। अगर वो प्रोटेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद रिव्यू के बाद डिसीजन चेंज होता है तो दोनों टीम को रिटर्न में बताया जाएगा सो दैट कि अगले दिन जिस टीम ने प्रोटेस्ट किया है वो बॉक्सर अपना खेलने के लिए तैयार रहे। रिजल्ट प्रोटोकॉल, हम कई बार हमें ना बड़ा डिलेमा रहता है कि वी आर इन कंफ्यूजन इन ए कंपटीशन हु इज 5th, हु इज 6th, हु इज 7th, हु इज 8th। तो उसके लिए आईबा हैज स्टार्टेड विद दिस प्रोटोकॉल्स व्हिच सेज कि गोल्ड विल बी फर्स्ट, सेकंड विल बी सिल्वर, इन सेमीफाइनल हु लॉस्ट टू गोल्ड मेडल विनर विल बी थर्ड, फोर्थ विल बी लूजर वर्सेस सिल्वर इन सेमीफाइनल,
इस तरह से उन्होंने सबका डिटरमाइन किया है। क्वार्टर फाइनल में जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हारा होगा वो 5th नंबर पे आएगा, जो क्वार्टर फाइनल में सिल्वर मेडलिस्ट से हारा होगा वो 6th में आएगा, और जो 3rd प्लेस से हारा होगा वो 7th आएगा। इस तरह की ये आपके रिजल्ट प्रोटोकॉल आईबा ने डिक्लेयर किए हैं अपने रूल नंबर 16.2 में। Knowledge of IBA scoring system. As you know, IBA scoring system must be used in all bouts, must be operated by the IBA scoring system operator. The IBA scoring system is based on 10-point must system. इसका मतलब है कि हर आईबा मतलब आईबा ओपन बॉक्सिंग में जितने भी डिसीजन बाउट्स हैं उनका पूरा स्कोरिंग सिस्टम आईबा 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम पे होगा। मतलब जब बाउट स्टार्ट होगी दोनों बॉक्सर्स के 10 पॉइंट्स होंगे उस राउंड के, उसके बाद जो उस बेसिस ऑन देयर प्लेइंग क्राइटेरिया वो 10 से नीचे आएगा। पर स्टार्टिंग में जब राउंड शुरू हो रहा था दोनों के पॉइंट 10 होंगे। ये नहीं है कि एक के साथ थे दूसरे के साथ थे, दोनों के 10 होंगे फिर कम किया जाएगा। इन ऑल बाउट्स ऑफ एओबी competition, the 5 judges for each bout are allocated a position around the ring accordance with the electronic draw by IBA scoring system. जब एक बाउट का अनाउंसमेंट होता है तो आईबा का जो स्कोरिंग सिस्टम कंप्यूटर है वो 5 रेफरी और जजेस को रैंडमली उठाता है बेस्ड ऑन देयर कॉन्टिनेंट और देयर नेशनल फेडरेशन। At the end of each round, each judge determines the winning boxer of that round by awarding a scoring 10 point and awarding 9 or less till 7 to minimum score to the losing boxer to have a declared winner for that round. इसका मतलब है कि आईबा में जब एक राउंड शुरू होता है और जैसे ही वो खत्म होता है उसके बाद हर जज को एक बॉक्सर को 10 पॉइंट, जो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था दोनों के 10 पॉइंट थे, एक को 10 देगा और दूसरे को 9, 8, 7 तक उसके एज पर क्राइटेरिया जो उसको लगेगा लूजिंग बॉक्सर का उसको देगा। द स्कोर ऑफ ऑल 5 जजेस शैल बी काउंटेड इन द डिटरमाइनिंग द विनिंग बाउट। सभी पांचों जजेस का स्कोर काउंट किया जाता है जब हम एक बॉक्सर को विनर डिक्लेयर करते हैं। Judges have to push the button on the scoring pad within 15 seconds. These scores are transmitted directly to a computer system managed by the deputy technical delegate, and no altercation or addition are made to this score after the initial transmission. The announcement of the score by the announcer and the live TV broadcast are made immediately at the end of bout after the approval of the score by the deputy technical delegate. इसके अनुसार मतलब जैसे ही एक राउंड खत्म होता है हर एक जज को 15 सेकंड के अंदर अपना स्कोर स्कोरिंग पैड में एंटर करना होता है। वो जैसे ही वो स्कोर एंटर करता है ओके दबाता है वो कंप्यूटर में चला जाता है जो कि टेक्निकल डेलीगेट उसको व्यू कर रहा है, और जैसे ही बाउट खत्म होती है ये स्कोर लाइव टीवी पे और ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिलीज हो जाता है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ डिप्टी टेक्निकल डेलीगेट। At the end of the bout, the precise score awarded and the judge who awarded each score is identified on public display. The public display also indicates the total score by each judge for each boxer for the entire bout, including any deduction due to warning. इसका मतलब है कि जैसे ही बाउट खत्म होती है स्कोर को डिस्प्ले किया जाता है। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है बाउट सो एंड सो द विनर इज रेड और ब्लू, उसके जैसे ही रिजल्ट अनाउंस करता है अनाउंसर उसी टाइम पे पब्लिक डिस्प्ले में पूरा जज का स्कोर आता है तीनों राउंड का और टोटल स्कोर ऑल्सो। अगर कोई वार्निंग है तो वही माइनस करके पूरा स्कोर डिस्प्ले हो जाता है। In case the total score awarded by each judge, including any deduction, are equal at the end of the round, decision is determined as per the rule 19.3 point of these rules. अगर किसी वजह से ये स्कोर इक्वल हो जाता है या दो जज एक को जिता रहे हैं दो जज को जिता रहे हैं और एक न्यूट्रल है, तब जब तक मेजोरिटी 3 जज किसी एक पर्टिकुलर बॉक्सर को नहीं जिताएंगे तब तक वो बाउट का विनर नहीं हो सकता। The judging score of all round must be disclosed or displayed until the winner of the bout announced. जैसे कि बताया था कि जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है तब तक वो जज डिस्प्ले पे स्कोर नहीं आता और उसके बाद ही स्कोर को डिस्प्ले में दिखा देते हैं। The deputy technical delegate informs the announcer of the official results. ये सिस्टम का स्कोरिंग सिस्टम का एक पार्ट है। टीडी आईबा स्कोरिंग कंप्यूटर से स्कोर लेके एक अनाउंसर को स्लिप देता है जिसमें स्कोर और पॉइंट्स देते हुए विनर को डिक्लेयर करते हुए उसको हैंड ओवर कर देता है।
each judge independently judge the merit of two boxers using the IBA scoring system based on the following criteria. नंबर ऑफ हर एक जज दोनों बॉक्सर्स को आईबा स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से स्कोर देता है, और जो क्राइटेरिया है स्कोरिंग देने का वो इस प्रकार है. नंबर ऑफ क्वालिटी ब्लोज ऑन टारगेट एरिया. आप सब क्वालिफाइड कोचेस हैं, आपको जैसे ही पता है कि जो क्वालिटी ब्लोज होता है वो पूरे टारगेट एरिया में कहीं भी अगर हिट किया है बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के और विद पावर के साथ, उसको स्कोरिंग ब्लो बोला जाता है. बेस्ड ऑन स्कोरिंग ब्लो एक राउंड का स्कोर आप जजेस उसको एंटर करता है. दूसरा जो उनका क्राइटेरिया दिया गया है, डोमिनेशन ऑफ द बाउट बाय टेक्निकल एंड टैक्टिकल सुपीरियरिटी. अगर इन दोनों में पहले वाले क्राइटेरिया में कुछ गैप रह जाता है तो फिर वो देखते हैं कि कौन सा टेक्निकली और टैक्टिकली खेला है, मतलब किसने गेम में फुटवर्क और अपनी मूवमेंट का पूरा किया है, किसकी गेम टैक्टिक्स अच्छी थी. इन बेस पे वो अपना रिजल्ट विनर अनाउंस करते हैं. तीसरा है कॉम्पिटिटिवनेस. कई बार क्या होता है कि एक राउंड एक बॉक्सर जीत गया, दूसरा राउंड दूसरा बॉक्सर जीत गया, थर्ड राउंड में वो देखेंगे कि कौन बाउंस बैक कर रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस किसमें ज्यादा है, किसमें भूख ज्यादा है जीतने की. ये एक थर्ड क्राइटेरिया बनाया गया कि इसमें कॉम्पिटिटिवनेस देखी जाती है एक बॉक्सर की कि वो कब तक उस जो गिव अप नहीं कर रहा. The judges must apply the following criteria to score each round 10 versus 9, that is close round. मतलब जो 10 और 9 का स्कोर आएगा तो वो बहुत ही क्लोज राउंड होगा. वो इतना क्लोज रहा होगा कि जजेस को हो रही होगी कि किसको विनर करें किसको ना विनर करें. उसके बाद आता है 10-8 का स्कोर. उसमें बिल्कुल जजेस माइंड बना चुका था कि इस राउंड में ये बिल्कुल क्लियर विनर था रेड, और ब्लू को मैं 8 पॉइंट दूंगा, जिससे कि जो उसकी जस्टिफिकेशन है स्कोरिंग की वो क्लियर हो जाए. और 10 वर्सेस 7 इज टोटल डोमिनेंस. मतलब एक बॉक्सर ने दूसरे बॉक्सर को खेलने का ज्यादा मौका दिया ही नहीं, या वो नॉइसिस बॉक्सर था और दूसरा मैच्योर बॉक्सर था, उसने उसको खेलने का मौका नहीं दिया था. उस केस में हम 10-7 का भी स्कोर दे सकते हैं. At the conclusion of each bout and each session, the result recorded in the IBA scoring system must be printed and headed to technical date. जैसे ही बाउट और सेशन खत्म हो जाता है, उस सेशन के पूरे स्कोर इंक्लूडिंग जजेस स्कोर टेक्निकल डेलीगेट को हैंडओवर कर दिए जाते हैं. In IBA owned and IBA sanctioned competition, at the end of each session, IBA scoring system operator forward the session results to IBA headquarter. मतलब हर कंपटीशन जो मेजर कंपटीशन है और कॉन्टिनेंटल कंपटीशंस हैं, उनके पूरे स्कोर आईबा हेडक्वार्टर कंप्यूटर उसमें डाटाबेस में भेजे जाते हैं, वो जो कि रिकॉर्ड के लिए रखे जाते हैं. और ये सेम स्कोर डिस्प्ले भी किए जाते हैं आफ्टर द सेशन. In all AOB competition, after the final session of the competition, IBA scoring system operator forward all competition document to IBA headquarter. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. डिसीजन के बारे में जैसे आप जानते हैं कि 7 डिसीजन है. पहला विन ऑन पॉइंट्स. जब बाउट पूरी तीनों राउंड चलती है, बेस्ड ऑन जजेस स्कोर ये डिसीजन आता है विन ऑन पॉइंट्स. इसमें स्प्लिट डिसीजन हो सकता है 4-1, 3-2, 5-0. फेक डिसीजन अबेंडन. If a boxer retire voluntarily or if the coach throws the towel into the ring or the apron, however not while the referee is counting, the opponent is declared winner by the abandon. इसका मतलब है कि पहले जो रिटायर होता था अभी उसको अबेंडन बोल दिया गया है. अगर कोच अपना टावल थ्रो करके अपने बॉक्सर को रिटायर करता है या बॉक्सर खुद मना कर देता है तो वो अबेंडन की कैटेगरी में आ जाता है. विन बाय आरएससी. If a boxer failed to resume boxing immediately after the rest period between the rounds, the opponent is declared the winner of the bout by RSC. इसका मतलब है कि फर्स्ट राउंड में जब आपका बॉक्सर रेस्ट के लिए गया और सेकंड राउंड की जब अपनी घंटी बजी वो उठ के खेलने नहीं आया तो उस केस में उसको आरएससी दिया जाएगा, चाहे वो खुद खेलने से मना कर रहा हो, वो अबेंडन में नहीं आएगा. If a boxer in the referee's opinion is being outclassed or receiving excessive punishment or hard blows, the bout is stopped and the opponent is declared the winner by RSC. इसका मतलब है कि रेफरी को लगता है कि एक बॉक्सर बहुत ही वीक है और एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अननेसेसरी पनिशमेंट खा रहा है, तो उस केस में बॉक्सर अपने डिसीजन से उसको आरएससी कर सकता है.
If a boxer is unfit to continue and fails to resume boxing after a knockdown, the opponent is declared the winner by RSC. अगर आपके बॉक्सर ने किसी ओपोनेंट को हिट किया और रेफरी ने काउंटिंग दी, आफ्टर 8 रेफरी को लगता है कि ये नॉकआउट तो नहीं है बट ये आगे खेल नहीं सकता, उस केस में भी रेफरी उसको RSC दे सकता है. If a boxer does not recover after 90 seconds, as per rule 22, the opponent is declared winner of the bout by RSC. 90 सेकंड का रूल आता है लो ब्लो में. जब आपके बॉक्सर को किसी एक बॉक्सर को लो ब्लो लगता है और वो 90 सेकंड में भी रिकवर नहीं कर पाया, अगर रेफरी ने उसको 90 सेकंड का टाइम दिया रिकवरी के लिए, in that scenario also he will be RSC. In the case of a boxer is being punched out of the ring by a legal blow, the boxer must be allowed 30 seconds to come back in the ring after the 8 count without the help of anyone. In case the boxer is not able to come back within above mentioned time frame, such boxer is deemed to have lost the bout by RSC. अगर एक बॉक्सर को एक राइट सही पंच से वो रिंग के बाहर चला जाता है, उस समय में रेफरी सबसे पहले उसको काउंटिंग देगा. अगर वो 8 तक खड़ा हो गया तो फिर वो टाइम की कार्रवाई करते हुए 30 सेकंड उसको देगा वापस रिंग में आने के लिए. अगर वो 30 सेकंड में नहीं आ पाता किसी की हेल्प के बगैर, तो वो भी RSC से बाउट हार जाए. मेडिकल जर्नल वेइंग इन. Within 3 months before all AIBA sanctioned competition, boxer must pass a medical examination with a doctor of their choice to receive their completed, signed and stamped AIBA medical book. जैसे कि आप सबको जानते हैं कि AIBA की जो मेडिकल बुक है उसमें ईयरली आपको मेडिकल कराना होता है. इसके साथ साथ जब आप किसी मेजर कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, 3 पहले भी आपको एक जो आपके मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे अपने बारे में फिट का सर्टिफिकेट लेके एंट्री करवानी पड़ेगी. Pre-bout medication must be on the same day as the bout and takes place during the daily weighing. जो डेली वेइंग है उससे पहले बॉक्सर को डेली मेडिकल के लिए भी आना पड़ता है, उसको पास करना होता है, उसके बाद ही वो वेट दे सकता है और आगे बाउट में खेल सकता है. The technical decide the starting time of the pre-bout medical examination and must communicate to the starting time to the LOC, team delegation and competition official. ये TD डिसाइड करता है कि किस टाइम वेट होगा और किस टाइम मेडिकल शुरू कर सकते हैं, और इसकी इंफॉर्मेशन सभी को वो एडवांस में सबको दे देता है. Ringside doctor are assigned by the technical delegate to work at the pre-bout medical examination. जो रिंगसाइड डॉक्टर जो AIBA ने कंपटीशन में डिटेल किए हैं वही इस प्री बाउट मेडिकल एग्जामिनेशन की कार्रवाई को पूरा कर सकते हैं. चेयरपर्सन ऑफ द रिंगसाइड मेडिकल में सिलेक्ट लोकल और टीम डॉक्टर टू असिस्ट विद द प्री बाउट मेडिकल एग्जामिनेशन. अगर रिंगसाइड डॉक्टर्स को लगता है कि स्ट्रेंथ ज्यादा है बॉक्सर्स की और हमारे जो डॉक्टर आए हैं वो कम है, तो वो लोकल डॉक्टर्स की मदद से भी मेडिकल को कर सकते हैं. Local and team doctor must be qualified. Doctor must provide a legible copy of his current passport and medical credential. तो वो ये उनका रिक्वायरमेंट है. जो लोकल डॉक्टर ने अपॉइंट किए हैं उसके लिए उनको एक एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट देना जरूरी है. A boxer must be examined by the doctor and has to fit to compete before being able to weighing in. जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि weighing in जाने से पहले एक बॉक्सर का मेडिकल फिट होना बहुत ही कंपलसरी है. इन AOB कंपटीशन जेंडर टेस्ट भी कंडक्टेड. जितने भी AIBA ओपन बॉक्सिंग के टूर्नामेंट हैं, बड़े मेजर टूर्नामेंट्स हैं, वहाँ पे जेंडर टेस्ट होना कंपलसरी है. पोस्ट बाउट मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड एज पर द AIBA मेडिकल रूल्स. कई बार कई केसेस में कंकशन होता है, नॉकडाउन होता है, नॉकआउट हो जाता है. उस केसेस में पोस्ट बाउट मेडिकल भी होता है कई बॉक्सर्स का, कि उसकी इंजरी कितनी थी, उसका कंकशन कितना था, उसका मेमोरी लॉस कितना हुआ, उस बेस पे उसको मेडिकल बैन दिया जाता है. एडिशनल मेडिकल एग्जामिनेशन में भी कंडक्टेड एज पर AIBA मेडिकल. अगर इसके अलावा कोई मेडिकल करना है तो AIBA मेडिकल रूल्स के हिसाब से हम कंडक्ट करा सकते हैं. डेली वेइंग इन. जैसे कि आपको पहले पता चल चुका है कि नाउ देयर इज जनरल वेइंग इज ओवर, देयर इज नो जनरल वेइंग इन. One day prior, the competition technical delegate take out draws of all in that competition, and then every boxer who's detailed to
play on the particular day, he will come for daily weighing in. For daily weighing, during the boxer first day daily weighing in the competition, both the minimum and maximum weight limited are controlled. Boxer weight must not exceed the maximum of the boxer weight category or nor below the minimum of the boxer weight category. पहले दिन, जिस दिन डेली विन का पहला दिन है, जिस दिन बॉक्सर की पहली बाउट होने वाली है, उस दिन उस बॉक्सर का पूरा पूरा वेट लिया जाता है जिस कैटेगरी में खेल रहा है. अगर वो फ्लाई वेट में खेल रहा है तो वो 48 to 52 के बीच में ही होना चाहिए, ना उससे नीचे हो सकता है ना उससे ज्यादा हो सकता है. The weight register at the sports entry check decide the boxer weight category for the entire competition. वो आपको पता ही है कि जो एक बार कैटेगरी उसकी डिसाइड होगी वो उसी में खेलेगा. At the consequent daily weighing in, only the maximum weight limit is controlled, no weight limit. पहले दिन तो मैंने आपको बताया कि लोअर वेट भी चेक किया जाएगा, हायर वेट भी चेक किया जाएगा, मतलब दोनों कॉर्नर पे चेक किया जाएगा. मगर अगली बाउट में अगले दिन से उसका लोअर वेट नहीं चेक किया जाएगा, ओनली अपर वेट लिमिट चेक कर दी जाएगी. If the boxer exceeds the maximum weight limit at the daily weighing, that boxer is not allowed to continue competing as per IBA rule. अगर बॉक्सर का वेट जो उसका ऑथराइज वेट से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो वो ओवर वेट की करके उसको कंपटीशन निकाल दिया जाएगा और उसके ओपोनेंट को वॉक ओवर से जिता दिया जाएगा. A boxer is allowed to represent at the official scales only once. जैसे शायद आप सभी इसी को जानते हैं और फॉलो भी कर रहे हैं कि आपका बॉक्सर एक ही बार मेडिकल वेइंग फाइनल वेइंग के लिए एक बार मशीन पे चढ़ेगा, उसके बाद ही वो उतर नहीं सकता. अगर उसका वेट कम है तो आप पानी वहीं पिला सकते हैं, अगर उसका कुछ ज्यादा है तो उसका आप जो भी कपड़े हैं वहीं पे उसको उतारने के लिए बोल सकते हैं. The weight is in the one shown on the scale, the body being naked except for a swimming suit or underwear. When necessary, the boxer may take off the underwear. जैसा मैंने आपको बताया कि अगर जरूरत पड़े तो अगर बॉक्सर का वेट ज्यादा रहा तो अपना अंडरवियर भी निकाल सकता है. There is zero tolerance for any overweight than the chosen weight category. जो वेट निर्धारित किया गया है उसमें उसका जीरो वेट टॉलरेंस है, मतलब उससे किसी भी प्रकार से ऊपर वेट नहीं जा सकता. The weighing must be conducted by a competition official appointed by a technical delegate. जो weighing होगा वो competition officials द्वारा ही किया जाएगा. The weighing in must be conducted by a competition official at the same gender of the boxer. इसका मतलब है कि लड़कों का weighing मेल official करेंगे, फीमेल का फीमेल officials करेंगे. Electronic scale must be used for both test scale and daily weighing in scales have to be the brand and model calibrated daily and not moved after the calibration. इसका मतलब है कि दोनों जेंडर्स के लिए अलग अलग टेस्ट स्केल यूज किए जाएंगे और जो यूज किए जा रहे हैं वो एक ही ब्रांड के होंगे, एक ही मॉडल के होंगे, उनका कैलिब्रेशन भी एक साथ हुआ होगा और कैलिब्रेशन के बाद उन इक्विपमेंट को हिलाया नहीं जा सकता. टेस्ट स्केल मस्ट बी अवेलेबल एट द वेइंग इन एरिया एंड ईच टीम होटल. सेम ब्रांड के जो टेस्ट स्केल हैं वो आपके कंपटीशन एरिया में, वेइंग इन एरिया में और आपके होटल में भी अवेलेबल होने चाहिए. So I was there in daily weighing. The time from the end of the daily weighing and the start of the competition must not be less than 3 hours. कहने का मतलब ये कि जो आपका वेट खत्म हुआ है और नेक्स्ट फर्स्ट बाउट शुरू होने में कम से कम 3 घंटे का 3 hours का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है to give a proper rest to the boxer. So there are 3 type of fouls which we should tell our boxers before going to any competition and during the training also. In technical official we call them minor fouls, major fouls and flagrant fouls, and the penalty for the same are different for each foul. Foul which we call minor fouls are low head but away from opponent. मतलब कि आपका सिर नीचे है मगर आप ओपोनेंट से दूर हैं. लो हेड वैसे फाउल में आता है, बट अगर आप कंपटीशन आपके ओपोनेंट से दूर हैं तो वो दूर में हम उसको फाउल में नहीं काउंट करेंगे. लो हेड बट ऑन द क्वाड्रिसेप, सिर नीचे है मगर आपकी बॉडी उसके बॉक्सर के रीच से बाहर है, तब भी उसको आप फाउल काउंट नहीं करेंगे. लो हेड बट ग्लव्स आर इन फ्रंट ऑफ हेड, आपका सिर नीचे है मगर आपके हाथ जो आपके ग्लव्स हैं वो सिर के आगे हैं, उससे किसी बॉक्सर को ओपोनेंट को देयर इज नो हार्म, तो उसको भी हम लो माइनर फाउल की कैटेगरी में रखते हैं. माइनर पुशिंग, बाउट के दौरान व्हेन वी कम टू इन क्लिंच देन वी पुश अ बॉक्सर, दैट इज अ माइनर पुशिंग.
which we called is minor foul only. Holding during a bout, if during a clinch, if we hold up opponent, it is a minor holding. It is not a foul. It comes in minor foul only. And we says in technical or official language, no harm, no foul. जिससे किसी प्रकार की ओपोनेंट को हानि नहीं हो रही, उसको हम फाउल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे. नो हार्म, नो फाउल. और जो माइनर फाउल होते हैं उसको रेफरी बाउट को रोकता नहीं है, सिर्फ बोलता रहेगा रेड, हेड अप, ब्लू, नो होल्डिंग, रेड, नो पुशिंग. बाउट चलती रहेगी, उसमें he will not stop the bout, he will just continue the bout. These whatever comes in this category are minor fouls. Then comes to major fouls. Major fouls are required when boxer is about to get injury or about to get disadvantage to other boxer. These are low head. Boxer is going inside with the punch with a low head. That is called in major foul. Pushing opponent heads down or toward himself. Boxer को holding के दौरान उसके सिर को पकड़ के नीचे push कर रहा है. That is major foul. Holding two types. अगर बाजू पकड़ रहा है, if he is holding his arms or he is holding his back, both are called major fouls. Then slapping. Slapping is open gloves. Low blow is a major and flagrant foul. Not stepping back on command break. अगर आपका बॉक्सर ब्रेक की कमांड पे स्टेप बैक नहीं करता है, वो भी मेजर फाउल की कैटेगरी में आता है. हिटिंग बिहाइंड द बैक एरिया. अगर बॉक्सर का जो टारगेट डिजाइन डेजिग्नेटेड एरिया है उसके पीछे मार रहा है, वो भी मेजर फाउल में आता है. स्पिटिंग आउट द गमशील्ड इंटेंशनली विदाउट पंच. अगर वो गमशील्ड को जानबूझकर रेस्ट लेने के लिए जमीन में फेंक देता है, मेजर फाउल में आता है. इफ द गमशील्ड फॉल्स आउट द थर्ड टाइम, अगर थर्ड टाइम गमशील्ड with the punch also fall down third time, it is major foul. Pushing, faking, simulation. मतलब बॉक्सर मार रहा है, हाथ पंच किधर दिखा के मारने की कोशिश कर रहा है और हवा में पंच लहरा के कुछ करना चाह रहा है, वो भी मेजर फाउल में आएगा. कीपिंग द एडवांस हेड स्ट्रेट इन ऑर्डर टू ऑब्स्ट्रक्ट विजन. कई बॉक्सर हाथ को ऐसे रख के खेलते हैं, वो मेजर फाउल में आएगा. स्पीकिंग टू दिस ओपोनेंट. अपने ओपोनेंट को कई बॉक्सर बोलते हैं कम हिट मी एंड समटाइम्स दे अब्यूज आल्सो. दैट इज ए मेजर फाउल. पैसिव डिफेंस. आफ्टर 2 राउंड्स द बॉक्सर थिंक्स कि ही इज विनिंग और ही स्टार्ट टेकिंग डिफेंसिंग अप्रोच, तो वो एक मेजर फाउल में आता है. बॉक्सर को हमेशा कॉम्पिटिटिवनेस दिखानी है, ये एक मेजर फाउल में आता है. इंटेंशनली फॉलिंग. जानबूझकर गिर रहा है. ड्यूरिंग बाउट ही इज फॉलिंग इंटेंशनली जस्ट टू पास द टाइम. It comes in major fouls. Attack while holding the ropes or making any unfair use of ropes. अगर वो रोप के ऊपर गिर के पीछे सपोर्ट लेके आगे आ रहा है और रोप के पकड़ के बॉक्सर को होल्ड कर रहा है, वो मेजर फाउल में आएगा. क्लाउनिंग प्रैक्टिस. मतलब कि क्लाउनिंग प्रैक्टिस मतलब जोकर की तरह खेलना, जो कि आपके ट्रेडिशनल गेम से अलग होगा, वो भी मेजर फाउल में आएगा. ये जो मेजर फाउल है, इनको हम हार्ड क्वेश्चन से या वार्निंग से डायरेक्ट रोकते हैं. इट इज स्टॉप्ड बाय रेफरी बाय द हार्ड क्वेश्चन. ही विल से स्टॉप एंड देन ही विल डिक्टेट दैट infringement to the boxer, or he can straightway give the warning. When he is giving hard question or he is about to give warning, that time you should also, and your boxer also should know, now this foul I should not repeat. ये फाउल दोबारा हमें रिपीट नहीं करना है इस बाउट के दौरान, इसकी वार्निंग मिल सकती है. फ्लैग्रेंट फाउल. फ्लैग्रेंट फाउल में कंपलसरी वार्निंग है मिनिमम, और मे बी डिस्क्वालिफिकेशन आल्सो. सो व्हेन वी आर डूइंग इंटेंशनली और अनइंटेंशनली फ्लैग्रेंट फाउल, वी कैन गेट वार्निंग और डिस्क्वालिफिकेशन. वी शुड नो दैट. हिटिंग एन ओपोनेंट व्हाइल he or she is down. If a boxer fall down with punch or without punch, a boxer is duty, the other boxer duty is to not to hit. If he's hitting a down boxer, it comes in flagrant foul, because he knows he's already fallen. As a boxer, my duty is that I'll not hit him. Intentional low blow. If he hit a intentional low blow, that comes into flagrant foul. Headbutt. He comes with a head and give an injury to the boxer opponent.
that comes in flagrant foul. ये भी एक flagrant foul में आता है. Intentionally hit to the head or back. अगर वो घुमा के पंच आपके सिर के पीछे मार रहा है और हेड पे मार रहा है, वो flagrant foul में आएगा. Deliberation low after the bell, blow the bell after the bell. जैसे ही घंटी बजी और कई बार क्या होता है कि बॉक्सर मोशन में होता है, वो एक्सेप्ट भी हो जाता है, मगर घंटी बजी उसके बाद उसने टाइम लेके एक पंच मारा, वो फ्लैग्रेंट फाउल में आएगा. रेफरी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है. डेलिबरेट ब्लो आफ्टर द रेफरी से स्टॉप और ब्रेक. अगर जानबूझकर रेफरी के स्टॉप और ब्रेक बोलने के बाद वो हिट करता है, वो भी फ्लैग्रेंट फाउल में आएगा. बाइटिंग एन ओपोनेंट, जानबूझकर बाइटिंग करना टू ए बॉक्सर, क्योंकि बाइटिंग एक ऐसा काम है जो अनइंटेंशनली हो ही नहीं सकता. बाकी कुछ फाउल्स हैं अनइंटेंशनली भी हो जाते हैं, मगर बाइटिंग हमेशा, बाइटिंग इज ऑलवेज एन इंटेंशनल फाउल. So it is comes in flagrant foul and straightway you will get disqualification. Throwing opponent to the canvas means you are doing wrestling with the boxer, throwing him on the canvas. That comes into flagrant foul and you may be disqualified for the same. Abusive and extreme unsportsmanlike conduct against the opponent or referee. If you are abusing to the referee or judges, it comes against in the flagrant in unsportsmanlike behavior. इसमें ओनली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन और वार्निंग और डिस्क्वालिफिकेशन ही जो है वो मिलेगी. इसमें आपको माफ मिलने के चांसेस नहीं है ज्यादा. वार्निंग या फिर आपको डिस्क्वालिफिकेशन मिलेगा. अगर ये दोबारा रिपीट हो, इफ यू रिपीट अगेन, देन यू 100% यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर द सेम. हमें एज ए कोच पता होना चाहिए कि सॉफ्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, एंड वी शुड नॉट मिक्स देम when we are teaching our boxers. When he is coming for interval during the rest period, we should tell him, now please don't use this hard foul, major fouls, otherwise you will get a warning. That is your duty during the rest period. Automatic warning, spitting mouth face. If you are spitting gum shield intentionally, it is a direct warning. If it is coming out through the punches third time, it is again it is a warning. Automatic disqualification after biting, intentional low blow, intentional headbutt with a cut. If you are biting a boxer, you will get disqualification. There's no doubt about it. If you are giving a low blow intentionally, which is seen by everybody, you will get disqualification. If you are going with the head and the boxer get an injury, again you are disqualified for the same. Warning in third round, obviously you know disqualification hai. That's all from my side, Santiago. Thank you, Manoj. Any questions you put in the chat? We take 5-10 minutes to reply some questions. How many time protests in competition? Mr. Muhammad Arif. There are 2 protests given to a team for the competition. I'm audible? Yes. Hear you. If it's withheld, then you have a 2. If it is not taken, it is gone against you, then you only have 1 chance. It is like a card given to you. If one is used, sorry, I'll come in Hindi. आपको 2 चांस दिए जाएंगे. अगर दोनों कार्ड में से आपका एक कार्ड रिव्यू में फेल हो गया, तो आपको एक ही कार्ड रह जाएगा. अगर आपकी रिव्यू प्रोटेस्ट में जो आपने रिव्यू किया था और आपको बाउट मिल जाती है, तो वो कार्ड आपको वापस मिल जाएगा. अगेन आपके पास 2 कार्ड हो जाएंगे. तो इट इज ओनली 2 कार्ड ड्यूरिंग अ कंपटीशन. And you have to pay $500. How much? Yes. For each if it is withheld, then you will get $400, and $100 will be used for their working go. You'll get only $400 if it is withheld. Let's see here. Vibin Jacob. Sir, what about the boxer who is hit on the back of the head and knocked down? Then definitely, if it was intentional, he will be disqualified, and the other boxer will be given whatever sanction. If he is knocked out properly, then medical
doctor will decide his next course of action, whether he will be able to play or not. But the opponent who hit him on the back, he will be disqualified. मतलब जिसने बैक में पंच मारा है वो 100% डिस्क्वालीफाई होगा, और जो नॉकआउट हुआ है उस पंच की वजह से, उसके लिए डॉक्टर डिसीजन लेंगे कि वो अगली बाउट खेल सकता है कि नहीं खेल सकता, या उसको प्रोबेशन पीरियड दिया जाएगा 4 वीक का, व्हाटएवर जो सैंक्शन देनी है वो डॉक्टर डिसाइड करेगा. How do you make the call if one boxer is going down with the head and the other one throws the punch at the same time and it lands on the back of the head? See, that motion will be seen by referee. Sometimes it happens. One boxer is going down and the other boxer is pushing him down. The boxer who's pushing him down from the neck, he is on major foul, because if a boxer is low in height, definitely he has to go inside. Then it is a discretion of referee. That time he will decide who is doing major foul. And if it is intentional, is throwing punch on the hand, the other boxer will definitely get hard caution or public warning. From Elvis Besterwich, can you clarify the low blow foul and the reason why the boxer is stopped from fighting if he fails to recover within 90 seconds? Okay, in this case, when boxer get a low blow, referee give a count. And if he sees it is totally intentional, he straightway disqualify the boxer, and the other boxer will be declared winner. In case he start counting and he thinks he may be a low blow or not a low blow, in that case he start counting. After 8, he decide he should continue or not continue. After 30 seconds, last boxer, he will see boxer is ready to play or not, and the other boxer will go in a white corner. As per medical reviews, everybody says after 90 seconds of rest, any boxer who, if he gets also a direct low blow, he will recover. So just to give a fair chance to the other boxer, if it is not a intentional low blow, he will give a count of 90 seconds. If he doesn't recover in 90 seconds, he will be RSC. So in that case, I'm telling them in Hindi, जब हम एक बॉक्सर को लो ब्लो देते हैं, अगर वो 90 सेकंड में रिकवर नहीं कर पाया, जो मेडिकल कमीशन है आईबा का, उन्होंने रिसर्च किया है कि 90 सेकंड में कोई भी बॉक्सर लो ब्लो से भी रिकवर कर सकता है, क्योंकि आपने एल गार्ड भी उस टाइम पहना होता है, तो ये इतना हार्ड नहीं होता जितना हम उसको एक बार दिखा देते हैं. इन दैट केस अगर उसको 90 सेकंड तक रेफरी ले गया है, तो जो बॉक्सर जिसने पंच मारा है वो विल बी डिक्लेयर्ड विनर, ही विल बी आरएससी. Okay, a question from Ramanan. If the official weighing machine gives a few grams weight up and down, the trial weight machine will be acceptable? I think no. See, in this case, first of all, as I told you, the machine will be calibrated on the same scale, and if everybody is having that same problem, then advantage will be given to boxers. That has happened in Asian Youth Championship also. Then advantage will be given to each boxer. If the calibration is same, only one boxer protested that weight is in the outside machine is not okay, then it will not be taken in consideration. Question, Abhishek Shah. Can you clarify in spitting of the gum shield? Can you please put some light on that? See, there are you take out gum shield during a bout. A boxer can take out gum shield two type. One intentionally without any punch, one with the punch. You get a punch and the gum shield comes out. In both scenarios, the sanction is different. If you are taking out intentionally just to take rest, then referee give you warning. He'll take out gum shield and 2 seconds and they'll wash, because he's wasting his time, and other boxers also. If it is going through a punch, then it is not his fault. Due to some problem, it comes out, impact of the punch. Then after third round, after third fallen also, he will get a warning, because that is the responsibility of boxer to keep it in the mouth. Twice he may be given caution, but in this case, third will be automatically warning. Vipul Kumar, what will be the decision of the review if
TD found it wrong. Wrong means The referee's decision was wrong, and you have reviewed the bout. Then in that case, the result will be announced. Bout will be given to opponent, and the necessary sanction on the referee oblique judge will be decided by technical date in later stage. That this thing will be given to AIBA disciplinary committee also, that the protest was not right, the protest was right and decision was wrong. The same may be given to technical delegate by technical date to AIBA. Okay. Pankaj Yadav, why no compulsory count in elite men bout? See, there is, if you see practically, there are compulsory count limits are there. That was when WSB was there. Then there was no. They mentioned it no count, now count. If you see practically, third KD is automatically RSC, and in elite there are 3 rounds. If you get first count in first round, you get 2 count. In second, you get 2 count. In third, get 2 count. It makes 6. 7th will be automatically RSC. But when WSB or APB was there, for that they have mentioned no limit. But if you see practically, that thing is still continuous with the AOB also. Otherwise, practically, हमारे पास 7 ही counting होती हैं before getting RSC. Okay, last few questions. Vikas Singh, sir, can you clarify about the protest form? We protest all the rounds or only 1 round? No. First of all, it is for round only, for particular decision only. It can be against referee, it can be against judges. When you see the bout, this is, I think protest will be taken only when the bout is 3-2. I'm right, Santiago? I think it's not in the rules, but the last time they made the interpretation like that because there were too many protests. There were too many protests. So that is that's what I'm saying. They take protest only when bout is 3-2, and any of round which is because obviously 1 round is given by judge to a other opponent. That's why it becomes 3-2, and they protest against that round, and bout is good on that round only. Okay, Mr. Gupta. गुड इवनिंग कर्नल साहब. गुड इवनिंग, कैसे हैं? बहुत अच्छा सर. आज आपने बहुत ही अच्छा लेक्चर जो अपनी भाषा में कोचेस को समझाया, एंड इट विल बी वेरी वैल्यूएबल फॉर द बॉक्सिंग कोचेस एट द इंटरनेशनल लेवल एंड स्पेशली एट द नेशनल लेवल. जो अपने नहीं, वही मैं आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि कोचेस को मैं हमेशा बोलता हूँ कि बॉक्सर को बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ होता है, मगर जब बॉक्सर रिंग में जाता है तो आप उसको हैंड ओवर कर देते हो रेफरी जज को. तो रूल रेगुलेशन आपको पता नहीं होंगे तो आप उस बॉक्सर को जिता नहीं पाएंगे. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि रूल रेगुलेशन को कंपटीशन से पहले खुद पढ़ के जाएं, बॉक्सर को बताएं कि क्या फाउल्स में वो कर सकता है, किस फाउल को हम अवॉइड कर सकते हैं, किस फाउल को हम बिल्कुल नहीं रिपीट कर सकते. ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम उसको बता के आगे बॉक्सर को जिता सकते हैं. इसके ऊपर कर्नल साहब जब हम स्पारिंग का लेक्चर हुआ था उस दिन भी बात हुई थी. कई फाउल जो हम रेगुलरली जो उनके स्पारिंग सेशन में होते हैं वहां पे इग्नोर करते रहते हैं और बॉक्सर एक हैबिचुअल सा बन जाता है. और कोच उसी नजर से देखता रहता है जैसे स्पारिंग में देखता रहता है. वहां पे रेफरी अलग है, वो उस फाउल को पकड़ लेता है. और इट इज एटीट्यूड ऑफ द रेफरीज आल्सो. Yes, that's what I'm saying. यूरोप में जाएंगे दे में बी लिटिल लीनिएंट. आप नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे दे लाइक लिटिल हार्ड हिटिंग. अगर एशिया में जाएंगे तो दे आर लिटिल मोर स्ट्रिक्ट. तो ये हमारी एक ड्यूटी भी बनती है एज ए कोच और एज ए बॉक्सर. जो ऑफिसर है उसको पहचानना. Yes, मेरा भी यही पॉइंट है. ऑफिसर. Yes, that's what what he wants, you have to little control. You have to go little that side. See, और कई दफा आप उसकी कमांड्स को थोड़ा सा भी इग्नोर करते हैं, रेफरीज दे विल बी इरिटेटेड. और जहां पे आपको काशन बनता दे में गिव यू वार्निंग. बिल्कुल, मैं यही बोलना चाह रहा था कि आप जब आपको अपने बॉक्सर को जिताना है या बॉक्सर को जीतना है, उसको इम्प्रेस किसको करना है? कोचेस को इम्प्रेस नहीं करना, उसको जजेस को इम्प्रेस करना है अपने स्टाइल से, अपने गेम से.
अगर वो उस चीज में कामयाब हो जाएगा, आप अपने आप जीत जाएगा। दोनों एक लेवल के बॉक्सर होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, मगर जीतता कौन है? जिसको जजेस को जो इंप्रेशन में डाल लेता है कि हाँ ये अच्छा बॉक्सर है। और उसी तरह वो रेफरी के अगर जो तो भी उसने फाउल दिया है या कुछ दिया है उसको फॉलो करता है, रेफरी सोचेगा नहीं इसको शायद मैं एक और चांस दे सकता हूँ। अगर वो उसको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने ऑफिशियल्स को देखो और आपको 100% बाय द सेकंड और थर्ड डे यू विल कम टू नो कि कौन सा रेफरी किस चीज के लिए क्या करता है। और दूसरा जो मेरा पॉइंट था वो इसलिए था भी आपका जो यू हैव ए वेरी गुड एक्सपीरियंस एज ए मैनेजर, यू आर गोइंग एज ए मैनेजर विद द टीम एंड एज ए ऑफिशियल। आपने उन दोनों को दोनों नजरिए से देखते हुए कहाँ क्या डिमांड है और कहाँ क्या रिजल्ट ओरिएंटेड है, इन दोनों चीजों को कंपैरिजन करते हुए जो जो लेक्चर दिया है ये ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि कई दफा आपको वहां कोने में बैठे होते हैं, लग रहा है बॉक्सर को जानबूझ के दे दिया, बट वंस यू आर देयर एज ए रेफरी आपका एंगल और है। तो ये दोनों चीजों को जो मिक्स करके दिया, आई थिंक इट विल बेनिफिट आवर कोचेस एट द नेशनल और एट द यूथ जूनियर सब जूनियर्स। वेरी गुड लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, ओनली थैंक यू। Okay, great. Yeah, Thank you very much, Colonel. Great session. thank you. Thank you. I see all of you tomorrow. We continue with the program, Mr. Gupta, about speed training. Same time. Thank you very much. Okay, thank you everybody. Thank you, sir. Thank you.